एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी Good evening, one and all. Welcome to YPS Academy to give. So in today's video, I am going to teach you challenging questions of Pythagoras theorem chapter. That is the second chapter of your 10th standard geometry part. So to have command over these challenging questions, you must know all the properties. You must have command over all the theorems, all the properties of the which you have learned while you learn through the chapter. Then only, if you know the properties, that's well and very good. If you don't know the properties well, first make sure that you know all the properties very well. Then only go to solving challenging questions. So here is the one. Every time when I take any challenging question, whenever you have a question in front of you, pause the video, take the question, take the figure first. Then only again resume the video and listen the explanation part. Let's go with the first challenging question. Here we have, so in triangle ABC, angle ACB equals to 90 degree. सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल आया, सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि अपने को क्या अप्लाई करना है. राइट एंगल ट्रायंगल आया तो क्या अप्लाई कर सकते हैं अपन, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. अनदर गिवन कंडीशन हियर, CD perpendicular AB. That means altitude is drawn on the hypotenuse. जैसा ही एक सिचुएशन आता है कि altitude is drawn on the hypotenuse, based on this we can apply two properties. Which are the two properties? One, similarity in right angle triangle. दूसरा, property of geometric mean. तीसरी और एक बात दिए वाला है, given बात, segment CE is the bisector of angle ACB. CE bisects angle ACB. अब बाइसेक्टर आया तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. तो सबसे पहले आपका अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्या क्या इनपुट कंडीशन से, क्या क्या गिवन कंडीशन से, उनके ऊपर बेस्ड आप लोग कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखना है, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट की तरफ जाना है और थोड़ा सा सोच समझ के आपको अप्लाई करना है. अब थोड़ा सा रिक्वायरमेंट की तरफ देखते हैं अपन. प्रूव दैट AD by BD is equal to AE by B. In the first glance, AD by BD डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करे तो आएगा, फर्स्ट क्लास में नहीं लग रहा है. ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, स्क्वायर को छोड़ दो, पहले ए बाय बी को देखो. ए बाय बी, इफ यू अप्लाई एनी प्रॉपर्टी, कैन यू गेट ए बाय बी? सी ए बी आर द साइड्स अपोजिट टू वर्टेक्स सी फ्रॉम वेयर एंगल बाइसेक्टर इज फ्रॉम. अगर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, सी बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, CA by CB is equal to A by B. सबसे पहले आपको कौन मिल रहा है, A by B आपको सबसे पहले मिलेगा. इसलिए आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रॉपर्टीज, सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर बेस्ड कौन से प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई कर सकते हैं. ये आपको अच्छे से आना, तब जाके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आई विल reduce the size. I hope you have taken the question here. I am going first application of angle bisector property. पहले मैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं. CE bisects angle ACB. Therefore, CA divided by CB equals to AE divided by B. थोड़ा सा भी नहीं होता, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आ चुका है. Here the reason, angle bisector theorem, right? But you need A square by B square. अगर जो टर्म आया उसका अगर स्क्वायर चाहिए तो आप उसको स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, squaring on both sides, you will make it quite changes. Instead of C, I will write AC divided by BC equals to, squaring करेगा ना, AC square by BC square is equal to AE square divided by BE square. Make it as equation number 1. यहां तक आ चुके हैं आप लोग, ठीक है. Now, one more thing here, the given question part, each and everything that has been given has to be applied. हर एक पार्ट जो गिवन का है, एवरी पार्ट कुछ ना कुछ इसका यूज है, कुछ ना कुछ इसका एप्लीकेशन है. यहाँ पे रुकते हैं. AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर तो नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कौन, AD डिवाइडेड बाय BD. वन मोर गिवन पार्ट अपन जो मिस कर रहे हैं, CD परपेंडिकुलर AB.
सीडी की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं, बट यू नीड एडी एंड बीडी। एडी और बीडी की जरूरत है। एडी और बीडी कहां पे मिलेगा आपको? सीडी ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपको एडी और बीडी, हाँ ऑफ कोर्स एडी इंटू डीबी मिलेगा, लेकिन चाहिए कैसा? एडी बाय बीडी चाहिए। देखते हैं, लेकिन एडी और बीडी तो आ रहा है ना, तो लेट्स गो फॉर एप्लीकेशन। सो अनदर गिवन इनटू CD perpendicular hypotenuse AB, right? So by geometric mean property, CD square is equal to AD into D. Make it as equation number 2 by taking geometric mean theorem. अब आती है असली बात, क्या क्या चीजें, क्या क्या सेगमेंट्स आपको आईएसओ है और कौन सा सेगमेंट आपको चाहिए। देखो इधर रिक्वायरमेंट ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो है, साथ में कौन आया? AC BC। समझाता हूं पहले, स्क्वायर आया चलो ठीक है, AC BC का आईएसओ। रिक्वायरमेंट किसका है? AD एंड BD का है। AD और BD का रिलेशन किसके साथ में आईएसओ? CD के साथ में आईएसओ, ठीक है। नाउ AC BC CD के साथ तो AD BD आ चुका है, AD BD इन लोगों को रिलेट करने वाला कौन है? देखो मतलब ये सब मेरे को साथ में चाहिए, रिलेशन बिठाना है इसमें। देखो AC BC और कौन? CD एज वेल एज AD एंड BD। फिलहाल 3 सेगमेंट्स के बारे में सोचो, AC BC CD। अगर AC और BC के साथ में CD का रिलेशन अगर बिठा दिए, AC और BC का साथ रिलेशन अगर CD के साथ में अगर बिठाते हो, CD का रिलेशन ऑलरेडी किसके साथ में है? AD और DB के साथ में। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन AC BC एंड CD। हाउ कैन वी रिलेट दीज सेगमेंट्स? दोबारा बता रहा हूं, AC BC CD। AC और BC दे आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ACB, बरोबर है? and CD is a side of triangle ADB as well as triangle CDB। अब डायरेक्टली इन ट्रायंगल्स के बीच में तो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है? सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करने के बाद ट्रायंगल सिमिलर है, उसके बाद अपन करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। बात क्लियर है? लेट्स गो विद दैट वन। टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन AC BC एंड CD, लेट्स शो ट्रायंगल सिमिलर, एक लार्जर वाला और एक स्मॉलर वाला। स्मॉलर वाले के ऑप्शंस आपके पास 2 है, दोनों में से आप लोग कौन सा भी ऑप्शन ले लो। आई बात समझ में? नाउ ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल ADC। Why? This by similarity in right angle triangle. Directly you can say triangles are similar. अभी मैंने कौन से सेगमेंट्स बोला है? AC BC CD, ये लोग चाहिए। सबसे पहले तो AC मिल रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स में, AC बाय AD इज इक्वल टू CD बोलो या BC बोलो, BC के साथ कौन बैठेगा? BC। तीसरा साइड आ रहा है AB और AC, AB AC आ रहा है तुम्हारा साथ, AB एंड AC, already AC आ चुका है, don't take thirds, here reason corresponding sides of similar triangle। हाँ ये जो रेशियो आया इसमें से CD को आप लोग सेपरेट करो, क्योंकि CD आप लोगों को रिक्वायरमेंट में नहीं चाहिए। CD का वापर करना है और रिलेशन को किसमें बिठाना है? AD DB आएगा तो आएगा, साथ में AC एंड BC। लेट्स सेपरेट CD, DC को इधर लेके आओ, BC बोलो या CD बोलो, चलो ठीक है। CD इज इक्वल टू DC into AD divided by AC। Do we have any requirement of CD? No, we need to remove CD। Already एक बार इधर CD स्क्वायर आ चुका है। RHS में इक्वेशन 2 में AD BD की रिक्वायरमेंट है, वो आ चुका है। यहाँ पे भी CD का आ रहा है। ये दोनों को इक्वेशन को अगर इक्वल करना है तो पहले आपको CD स्क्वायर करना पड़ेगा। So here squaring on both sides, squaring on both sides, you'll get CD square is equal to BC square into AD square divided by AC। Pretty clear? Give it as equation number 3। Now
फ्रॉम 2 and 3. इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 ला कंबाईन करा. LHS इक्वल आहे, RHS पण इक्वल करा. AD into DB is equal to BC square into AD square divided by AC square. आपल्याला कुणाचा रिप्लेसमेंट लागतो? AC square by BC square चा रिप्लेसमेंट लागतो. तशी अरेंजमेंट करा. Here we have AC square, ह्याला इकडे लिहूया. AC square divided by BC square ला इकडे लिहूया. Is equal to on the RHS already you have AD square divided by कोणी आलं? AD into D. So here now we check the ratio. Here twice of AD, that is AD square divided by AD, these two will get cancelled. बचेगा AC square by BC square is equal to दो में से एक AD चले गया, बचा AD by AD. Give number equation number 4. Now combine equation 1 and equation 4. From 1 and 4. Here we are AC square का BC square by BC square का रिप्लेसमेंट मिल गया. कौन है यहाँ पे? AD divided by BB equals to AD square divided by BC square. I hope this problem is perfectly clear to all of you. सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ वीडियो देखना नहीं, साथ ही साथ आपको इनको करना है. जहाँ जहाँ पे अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, पॉज करो, लिखने का पार्ट कंप्लीट करते हुए. See you in the next video.